ہر ناکامی کچھ بہتری کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ہارلینڈ سینڈرز اپنی پہلی فرنچائز اور پھر اپنی کمپنی $2 ملین میں فروخت کرنے سے پہلے ہارلینڈ سینڈرز کو 1009 بار مسترد کیا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے مشہور فاسٹ فوڈ کی چین KFC کے لوگوں میں دکھنے والی اس شخصیت کا نام کولنل ہارلینڈ سینڈرز ہے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے محنت مزدوری کر کے گزاری، لیکن پورے 65 سالوں کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس نے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی؟ کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر میں ان کی اپنی ہی کمپنی KFC کارپوریشن نے ان پر کورٹ کیس کیوں کیا؟ ناظرین، ہارلینڈ سینڈرز 9 ستمبر 1890 انڈیانا کے شہر ہینری ویل کے قریب ایک چھوٹے سے فارم میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کی سب سے پہلی مشکل ان کو صرف 6 سال کی عمر میں ہی فیس کرنی پڑی، اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی، اور صرف 7 سال کی عمر میں ہی یہ بریڈ اور ویجیٹیبلز پکانے کے ماسٹر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا بہت مشکل ہونے لگا تو ہارلینڈ نے 10 سال کی عمر میں ایک فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ ہارلینڈ کی زندگی کا یہ پہلا کام تھا اور اتنی کم عمر کی وجہ سے ان کا دل کام پر نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے ان کو اس کام سے نکال دیا گیا تھا۔ جب ہارلینڈ 12 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور یہاں سے آغاز ہوا ہارلینڈ کی زندگی کے ایک اور مشکل کا۔ ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب ہارلینڈ کو اپنی ماں سے دور کر دیا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ دار کے پاس رہنے لگے۔ ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر فارم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح 6 بجے وہ فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالتے، اس کے بعد تیار ہو کر اسکول جاتے اور شام کے وقت مکئی چھیلنے کا کام کرتے تھے۔ اس وقت ہارلینڈ صرف 13 سال کے ہی تھے جب وہ انتہائی ٹف اسکیڈول میں اتنے سارے کام اکیلے کرتے تھے، لیکن اسی دوران ہارلینڈ پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ ایک انٹرویو میں ہارلینڈ سینڈرز نے بتایا کہ اصل میں ان کو الجبرا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اگلے 2 سال تک ہارلینڈ نے فارم پر کام کرنا جاری رکھا، لیکن کیونکہ اب خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، اسی وجہ سے ہارلینڈ نے US آرمی میں جانا چاہا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ عمر ہونا ضروری تھی۔ ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی ایج دکھائی اور آرمی میں سپاہی بھرتی ہو گئے۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ان کو ابھی سکون ملا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ آرمی میں رہنے کے 1 سال بعد جب ان کی اصلی عمر کا پتہ چلا تو ان کو آرمی سے بھی نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ 17 سال کے تھے اور آگے پورے 23 سالوں تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ اسی پیریڈ کے دوران ان کی شادی بھی ہوئی اور اسی پیریڈ میں کوئی جاب ایسی نہیں تھی جو ہارلینڈ نے نہ چھوڑی ہو۔ کبھی ان کو اسٹریٹ کار کنڈکٹر کے روپ میں دیکھا جاتا تو کبھی ان کو ریل روڈ فائر مین کی نوکری کرنی پڑتی، انشورنس سیلز مین، لائر، اسٹیم بوٹ آپریٹر، اور حتیٰ کہ انہوں نے ٹائرز بیچنے کا بھی کام کیا۔ کہیں وہ خود نوکری چھوڑ دیتے تو کہیں ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ آخر کار ایک دن ان کی وائف جوسفین بھی ان کو اکیلا چھوڑ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ کے کریئر سے تنگ آ چکی تھی۔ 34 سال کی عمر میں یعنی 1924 میں ہارلینڈ کی ملاقات کینٹکی آئل اینڈ گیس کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ انہوں نے ہارلینڈ کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ اپنے حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراً قبول کر لی۔ شروع کے دنوں میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمرز کی خوب آؤ بھگت شروع کر دی۔ کسٹمر کی اس ایکسٹرا کیئر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے گیس اسٹیشن کی سیل 3 گنا بڑھ گئی اور ایک بار پھر سے ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں خوشیاں دکھنا شروع ہو گئیں۔ خوشیوں کے دن ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکنامک ڈپریشن نے گھیر لیا، جس کی
वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा कम हो गई कि उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और यूं एक बार फिर हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अब हार्लैंड 40 साल के हो चुके थे जब एक बार फिर से उनको जॉबलेस कर दिया गया था। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड की एक्सपीरियंस को देखा तो उन्होंने एक बार फिर गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। ये ऑफर मिलती ही हार्लैंड को एक बार फिर डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला। इसी वजह से उन्होंने ये ऑफर भी फौरन कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से वहाँ आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड जाती तौर पर मुख्तलिफ चीजें पकाकर खिलाते थे। इस वक्त उन्होंने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर बैक वक्त 6 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। पहले तो कस्टमर्स उनकी बनी हुई हॉट कुकीज, कंट्री हैम, स्ट्रिंग बीन्स, ओकरा बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड कर दिया था। देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई थी कि अब उन्होंने गैस स्टेशन के साथ ही एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों के बैठकर खाने की जगह मौजूद थी और इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सैंडर्स कैफे का रुख करने लगे थे। लेकिन इसी दौरान हार्लैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट्स लगते थे जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट का इमेज खराब हो रहा था। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हार्लैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। हैरत अंगेज तौर पर यह ट्रिक काम कर गई थी और 30 मिनट में पकने वाली चिकन सिर्फ 8 मिनट्स में ही तैयार होने लगी। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से काफी खुश थे और दिन ब दिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करते रहे। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और एक बार फिर अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में निपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश बहुत कम हो गया था और देखते ही देखते लोगों ने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हार्लैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से 1942 में जब हार्लैंड 52 साल के थे तब उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स कैफे को ताला लगा लिया। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो हार्लैंड ने एक बार फिर रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और न ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। इसी वजह से हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कॉलोनल के एजाज से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हार्लैंड को कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ उन्होंने मिलकर ये रेस्टोरेंट खोला था उसके साथ बात नहीं बनी तो कॉलोनल हार्लैंड ने उसको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कॉलोनल हार्लैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती चली गई। एक दिन कॉलोनल हार्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई और उन्होंने हार्लैंड को रेस्टोरेंट बेचने की एक बहुत अच्छी ऑफर भी दी। वो एजेंट कॉलोनल हार्लैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 अमेरिकी डॉलर्स में लेने का ख्वाहिशमंद था। वो एजेंट कई बार यही ऑफर देता रहा लेकिन कॉलोनल हार्लैंड किसी सूरत भी ना माने और यही एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास होने लगी। अब कॉलोनल हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और ऐसे ही उनकी सेल्स भी 90% टूट गई थी। अब कॉलोनल हार्लैंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 अमेरिकी डॉलर्स की ऑफर दे रहा था अब $80,000 अमेरिकी डॉलर्स में भी खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके 75,000 अमेरिकी US डॉलर्स में कॉलोनल हार्लैंड ने ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त हार्लैंड की उम्र 65 साल थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के 105 अमेरिकी डॉलर के अलावा कमाने का और कोई जरिया नहीं बचा था। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 साल की उम्र में आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन
रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लाउडिया सैंडर्स के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स विजिट करते गए और वहाँ उनको अपनी चिकन पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनसे राइट्स खरीद लेते थे और हर एक चिकन पर कॉलिन हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते। कॉलिन हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कॉलिन हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि कई बार उनको रातें भी उनकी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कॉलिन हार्लैंड सैंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों के बाद जब कॉलिन हार्लैंड 73 साल के हुए तो वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कॉलिन हार्लैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से 1964 में कॉलिन हार्लैंड ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन आज के वक्त के हिसाब से 14,88,75,000 अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं, यानी 329 अरब 73 करोड़ 5,50,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये भी तय पाया था कि KFC के लोगों में हमेशा कॉलिन हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और कॉलिन हार्लैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज पर जाएंगे, यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस कॉलिन हार्लैंड सैंडर्स ही रहेगा, जिसके लिए हार्लैंड को KFC की तरफ से 6,250 अमेरिकी डॉलर्स पर महीने की तनख्वाह पर रखा गया। नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि जिस कंपनी ने KFC को कॉलिन हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कॉलिन हार्लैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया था। कॉलिन हार्लैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं, उस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लाउडिया सैंडर्स के नाम शेल्बीविल के नाम से रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉर्पोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी कॉलिन हार्लैंड सैंडर्स को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कॉलिन हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लाउडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लाउडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। नाजरीन, आपको मजीद बताते चले कि जापान में KFC इतना मकबूल है कि हर साल क्रिसमस पर जापान में KFC के चिकन को एक त्योहार के तौर पर खाया जाता है। KFC चाइना में खुलने वाली पहली इंटरनेशनल फास्ट फूड की चेन थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में KFC पहली अमेरिकन फास्ट फूड चेन थी। KFC से पहले इसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था, लेकिन क्योंकि इसमें फ्राइड चिकन लिखा आ रहा था और ये लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक मनफी तासुर देता था, तभी केंटकी फ्राइड चिकन से इसका नाम छोटा करके सिर्फ KFC कर दिया गया था। KFC सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 80 लाख लोगों को सर्व करता है। 1980 में 90 साल की उम्र में कॉलिन हार्लैंड सैंडर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी इख्तिताम को पहुंची। उनके मरने के बाद केंटकी स्टेट ने 4 दिन तक उनके मरने का सोग मनाया था और केंटकी स्टेट बिल्डिंग पर 4 दिन तक अमेरिकन फ्लैग नीचे कर दिया था। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की खबर वक्त पर मौसूल हो सके। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।